یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ یہ فرقہ انگریز کے دور کی پیداوار ہے، اس سے پہلے یہ فرقہ موجود نہیں تھا۔ اس پر میں نے 2 شہادتیں پچھلی دفعہ عرض کی تھیں، ایک نواب صدیق حسن خان صاحب کی کتاب الحکہ سے اور دوسری مولانا محمد حسین صاحب بٹالوی سے کہ یہ فرقہ جدید فرقہ ہے۔ آج کل ایک ان کی کتاب چھپ رہی ہے فتاوی علماء حدیث، جس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ ہم فتاوی عالمگیری کے مقابلے میں اسلامی قانون کے طور پر کتاب شائع کر رہے ہیں۔ اس کی 7ویں جلد کے 79 صفحے پر بھی مولانا عبداللہ صاحب غزنوی اور مولوی عبدالثواب صاحب ملتانی ان کا یہ بیان موجود ہے کہ ہمارے اس زمانے میں ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے جو اتباع حدیث کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اتباع حدیث سے بہت دور ہیں۔ وہ لوگ اللہ کے نبی کی سنتوں کو مٹانے والے ہیں اور شریعت محمدیہ کی حد بندی کو ختم کرنے والے ہیں۔ وہ صحیح حدیثوں کو معمولی جرح قطع اور بےہودہ تعویلوں کے ساتھ رد کر دیتے ہیں اور ضعیف حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں۔ صحابہ کے اقوال کو ایک بے طاقت سے قانون کی وجہ سے مردود قرار دے دیتے ہیں۔ تو انہوں نے دونوں باتیں یہ لکھی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ فرقہ اس دور کی پیداوار ہے اور دوسرا یہ کہ ان کا دعویٰ عمل بالحدیث بالکل غلط ہے، یہ صحیح حدیثوں کو معمولی بہانوں سے رد کر دیتا ہے۔ میں چونکہ پہلے خود غیر مقلد رہا ہوں، اس لیے مجھے تو یہ تجربہ ہے کہ یہ لوگ حدیث کو نہیں مانتے۔ یہاں میرا خیال یہ ہے کہ میں خود اپنا حنفی ہونے کا واقعہ اختصار کے ساتھ عرض کر دوں۔ ہم وہ رسالہ پڑھتے، اب وہ رسالے جن لوگوں نے پڑھے ہیں ان کا طرز یہ ہوتا ہے، چھوٹا سا رسالہ ہوتا ہے، اس میں ایک آدھ روایت اپنے مسلک کی نقل کی، اس کے بعد یہ لاب زنی شروع ہو جاتی ہے کہ ہم نے اتنا عرصے سے دیوبند میں، بریلی میں، ڈابیل میں، دہلی میں فلاں مدرسے میں اشتہار بھیجا کہ جیسے ہم نے اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی ہے ایسی تم حنفیوں کے پاس بھی نبی پاک کی حدیث ہو تو پیش کرو، ہم 100 روپے انعام دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ لیکن 40 سال گزر رہے ہیں، وہ دیوبند والے ہم سے معافیاں تو مانگتے ہیں کہ آپ ہم سے حدیث نہ پوچھا کریں، ڈابیل گئے انہوں نے ہم سے معافی تو مانگی کہ آپ ہم سے حدیث نہ پوچھیں، لیکن نہ انہیں اللہ کے نبی کی حدیث ماننے کی توفیق ہوئی اور نہ اللہ کے نبی کی کوئی حدیث پیش کرنے کی توفیق ہوئی۔ اب ایک ان پڑھ آدمی کے لیے جتنے بڑے بڑے علماء تھے ان کا ذکر آ جاتا ہے تو ہم سمجھتے کہ بھئی واقعی حقیقت بھی یہی ہے۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے بار بار کہ اللہ کے نبی جب پہلے ساری دنیا پر غالب آ گئے تھے تو اب کون ٹھہر سکتا ہے ان کی حدیث کے سامنے، خواہ وہ دیوبند کا مدرسہ ہو یا کسی علاقے کا مدرسہ ہو، کوئی نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہمارے ذہن تو بات یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے استاد صاحب کوئی سوال لکھ دیتے، کوئی شرط لگا کر کے اس قسم کی حدیث ہو، صحیح، صریح، مرفوع، غیر موضوع، بخاری کی ہو، فلاں کی ہو، ایسی حدیث کوئی دکھا دے تو ہم 100 روپے انعام دیں۔ اب گاؤں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے پاس حدیث کی کتابیں ہوتی کہاں ہیں، اور اگر بالفرض کوئی دکھا دے تو صحیح کون کرتا ہے؟ وہ تھا کوئی حدیث ہو۔ اب مسلم تک کی حدیث وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کو ضعیف نہیں کہا جا رہا، آپ نسائی ترمذی کی حدیث ابن مسعود کی ترک رفع یدین پر اس کو ضعیف نہیں کہتے۔ تو اب وہ ان کو جبریل امین بھی آ کر کہہ دے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو وہ تو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب ایسی شرطیں لگا کر وہ حدیثیں ہمیں لکھتے تھے، ہم جاتے، اول تو کوئی حدیث سناتا نہ، اگر کسی کے پاس ہوتی تو ہم سیدھے کہتے یہ ضعیف ہے، بس کسا کا، اور ہمارا دل بڑا مضبوط ہوتا کہ بھئی ہمارے سوال کا جواب کسی کے پاس۔ سن 53 کی تحریک جو قادیانیوں کے خلاف چلی، اس میں حضرت مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجک کے تھے اور مدینہ منورہ میں پچھلے سال حضرت کا وصال ہوا۔ حضرت علامہ انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ حضروں میں جو لوگ جانتے ہیں حافظ رفیع صاحب، یہ ان کے داماد بھی ہیں اور عزیز ہیں، اور مولانا عبد القدیر صاحب
दामत बरकातुल आलिया जो आजकल राजा बाजार में शेखुल हदीस हैं रावलपिंडी में, ये दोनों हजरात अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द में थे। इन्हें वहां से इस तहरीक के सिलसिले में हुकूमत ने गिरफ्तार किया, और चूंकि पंजाब में साहिवाल जेल और मियाँ वाली जेल ये सख्त तरीन जेलें शुमार होती थी, इसलिए बड़े बड़े लीडरों को इन दो जगहों में से किसी एक जगह ले आते थे। तो इन दोनों हजरात को इस तहरीक के सिलसिले में साहिवाल जेल में मुंतकिल कर दिया गया। हमारे उकाड़ा में हजरत मौलाना हिफ्जुर रहमान सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह के साथियों में से एक बुजुर्ग थे मौलाना जियाउद्दीन साहब सिहारवी रहमतुल्लाह अलैह। वो इसी दौर में कहीं पढ़ते रहे थे दारुल देवबंद में, और मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह से कोई एक आध सबक उन्होंने पढ़ा था। वो यहाँ ले उकाड़े में कि जी आप रिहाई के बाद उकाड़े रह जाए। मौलाना ने बड़े इश्तहारात शाये किए कि भी अल्लामा अनवर शाह के शागिर्द और हदीस के फन के माहिर वो तशरीफ ला रहे हैं। तो मेरे उस्ताद साहब जो दूसरे थे मौलाना अब्दुल जब्बार साहब खंडेलवी मुहद्दिस राजपूताना, जो मौलाना अताउल्लाह हनीफ के भी उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई अनवर शाह के शागिर्द आ रहे हैं, अब जाना है वहां इश्तहार लेके उनसे सवालों का जवाब पूछना है। तो एक कद्दे आदमी इश्तहार मुझे दिया गया। अब्दुल जलील सामरूदी ने बंबई से उसे शाये किया था, दुनिया भर के हनफियों को 10,000 रुपए नकद इनाम का खुला चैलेंज। अब वो इश्तहार लेकर मैं चला गया। हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत बड़ी बेतकल्लफ किस्म की थी। मैं जाकर बैठा, पहले हजरत का सर दबाने लगा, कुछ बातें इधर उधर की शुरू की, और कोई 8 घंटे के बाद इश्तहार निकालकर हजरत के सामने रख दिया कि हजरत ये जरा हमें समझाएं ये क्या लिखा है। हजरत ने ऊपर से सिर्फ उन्वान देखा और फरमाया कि मौलाना अब्दुल कदीर साहब से ये बात करो इसे। मैं उठा, मैं मौलाना के पास चला गया। मौलाना ने इश्तहार देखा और देखते ही फरमाने लगे कि दफा हो जाए यहाँ से, ये कहां से आ गया दिमाग जाटने के लिए। मैंने देखा कि भाई ये पीटेंगे भी। मैं फिर उठा और मौलाना के पास आ गया, मौलाना अब्दुल हन्नान साहब के पास। मैंने कहा हजरत वो तो मारते हैं। उनसे बातें करता रहा, कहने लगे भाई मुझे कुछ तकलीफ है आज, मौलवी साहब आपको ये मसले समझाएंगे, मैं उन्हें क्या देता हूँ। मैंने कहा जी पहले आप कहें, वो अगर मुझे बुलाएंगे तो जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाता। तो मौलाना ने आवाज दी और फरमाया कि मौलवी साहब ये लड़का आ रहा है आपके पास, लड़का ज़हीन है, कुछ जुलाब देने की जरूरत है। बस फिर वो जुलाब या में मुझे लग गया। अब जब मैं गया तो मौलाना के कहने से हजरत ने ये इश्तहार लिया और पढ़ने लगे। मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातुल आलिया इश्तहार पढ़ रहे थे और मैं हजरत का चेहरा मुबारक पढ़ रहा। कभी तो पढ़ते पढ़ते मुस्कुरा देते, कभी गुस्से में आ जाते। बहरहाल उन्होंने इश्तहार सारा पढ़ा और पढ़कर रख दिया कि भाई ये एक धोखा है दीन में और कुछ भी नहीं। मैंने कहा हजरत दीन में धोखा हो ठीक है, लेकिन इतनी बात से हमें तो कोई समझ नहीं ना आता। हमें तो ये पता है कि हम 10,000 रुपया लेकर फिर रहे हैं और कोई एक पैसा हंसी हमसे ले सकता नहीं। कितने मजबूत सवाल है हमारे। उन्होंने फरमाया कि इसकी तो कोई सतर धोखे से खाली नहीं, लेकिन एक दो जो बड़े बड़े धोखे हैं वो तुम्हें मैं समझा देता हूं। पहले मौलाना ने फरमाया कि देखो दीन को खेल तमाशा बनाना ये कतन गुनाह कबीरा है, ये बात याद रखो। अगर दीन का मसला इसलिए पूछा जाए कि मैंने उलमा को तंग करना है या उनका मजाक उड़ाना है, तो ऐसा आदमी जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेगा जो 500 साल के रास्ते तक पहुंचती है। और अगर इस नियत से दीन का मसला पूछा जाए कि मैंने इस पर अमल करना है और तस्लीम करना है, तो उसी वक्त उसका नाम जन्नतियों में लिखा जाता है और जब वो अमल करेगा उसका अजर और मजीद अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे। मैंने कहा हजरत मैं तो समझने के लिए ही आया हूं। तो हजरत ने फरमाया कि पहली बात तो ये समझें कि ये इश्तहार लिखने वाला अगरचे ये कहता है कि मैं अहले हदीस हूं, लेकिन हकीकत में ये कोई मुनकरे हदीस है।
क्योंकि मुतवातिर हदीस जिसको कोई फिरका ज़ईफ नहीं कहता वो ये है अल-बय्यनतु अलल मुद्दई, कि दलील मुद्दई के जिम्मा होती है। अब जितने ये इसमें मसाइल लिखे हैं इन सब में मुद्दई ये लोग हैं, रफ़ा दैन करते ये हैं, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ते ये हैं, ऊंची आमीन कहते ये हैं। अब हदीस मुतवातिर के मुताबिक इनके जिम्मा दलील है कि ये उसकी दलील दें कि किस दलील से ये इन कामों को सुन्नत समझते हैं। लेकिन इन्होंने सवाल ये लिखा है कि आप एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू से ये साबित कर दें कि हजरत ने रफ़ा दैन से मना फरमाया हो तो हम 1000 रुपया इनाम देंगे। मौलाना ने मुझसे पूछा कि जो फातिहा है इसका झगड़ा दो फिरकों से है ना, फातिहा लत्वाम वालों से और फातिहा खल्फुल इमाम वालों से। क्या जी ठीक है। तो मुस्कुराकर फरमाने लगे कि फातिहा में बुनियादी तौर पर मसले भी दो ही हैं, एक मसला तौहीद है, एक मसला तकलीद है। फातिहा लत्वाम वालों को तौहीद अच्छी नहीं लगती, फातिहा खल्फुल इमाम वालों को तकलीद अच्छी नहीं लगती, फातिहा को मानता है इनमें से कोई भी नहीं, और शोर सारा फातिहा पर चल रहा है इनका। तो मौलाना ने फरमाया कि अच्छा अगर तुम्हारा मुनाजरा किसी बरेलवी से हो जाए जो फातिहा लत्वाम का कायल है तो फातिहा वो पढ़ता है तुम नहीं पढ़ते ना, जी हाँ, उससे तुम क्या मुतालबा करोगे? ये मुतालबा करोगे कोई तुम खाने पर फातिहा पढ़ते हो इसकी हदीस दिखाओ? जी बिल्कुल। कि अगर वो तुमसे ये मुतालबा करे कि एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू ऐसी पेश करो कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास इसाले सवाब की नियत से खाना सामने रखकर फातिहा पढ़ने से मना फरमाया हो तो हम 50,000 रुपया इनाम देंगे। तो आप पेश कर सकते हैं ऐसी कोई हदीस? नहीं, मैं क्यों पेश करूं? जो पढ़ता है वो पेश करे ना। कि फिर इस इश्तिहार को देखो, यहां भी तो यही गलती है ना सबसे बड़ी। मुद्दे ये हैं और मुतालबा हमसे करते हैं। वो अगर ये सवाल बरेलवी हजरात करें तो तुम इस सवाल को गलत समझते हो या नहीं? मैंने कहा जी बिल्कुल गलत समझता हूं। कहने लगा अगर वो गलत है तो ये गलत क्यों नहीं? फिर फरमाया कि देखो अजान में राफजी कुछ कलिमात उन्होंने बढ़ा लिए हैं, अब हमें तो ये हक है कि उनसे मुतालबा करें कि भाई ये जो कलिमात आप ज्यादा कहते हैं ये क्या नबी अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम या कम से कम हजरत अली करमल्लाहु ताला वजू के जमाना में अजान में साबित कर सकते हो? क्योंकि वो ये कहते हैं उनके जिम्मे सबूत है अल-बय्यनतु अलल मुद्दई कि वो इसका सबूत दें। अब उन्हें पता है कि हम साबित नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने जाहलों को काबू रखने के लिए अगर यूं गलत सवाल बना दें कि सारी दुनिया के सुन्नी मिलकर एक हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू ऐसी पेश कर दें कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अजान में अशहदु अन्ना अलियन वलीअल्लाह कहने से मना फरमाया हो तो हम आपको 50,000 रुपया देंगे। तो क्या ऐसी हदीस सुन्नी सारे मिलकर पेश कर सकते हैं? मैंने कहा जी नहीं। तो फिर शियों की अजान सही है ना? कहा जी नहीं, वो तो गलत है। फरमाया जब ये बात बिल्कुल मुसलमा है कि दलील मुद्दई के जिम्मा होती है तो इसको अपनी दलील देनी चाहिए थी। अब इसने अपने गले से तो दलील का बोझ उतार फेंका और दूसरों को खत्म पा रहा है कि तुम इसके मना की हदीस पेश करो। अब मैं चूंकि था तो गैर मुकल्लिद, मैं बात गौर से सुन रहा था लेकिन ज़हन में सोच ये रहा था कि आखिर अल्लामा अनवर शाह रहमतुल्लाह के शागिर्द है ना, ये बातें खूब बनाएंगे लेकिन हदीस नहीं मुझे कोई सुनाएंगे। बातें दिल में मैं यही कह रहा था कि आखिर अल्लामा साहब के शागिर्द हैं, बातें खूब बनाएंगे, 10 घंटे बातें करते रहेंगे, बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें होंगी लेकिन नहीं सुनाएंगे तो अल्लाह के नबी की हदीस हमें नहीं सुनाएंगे। बस ये मेरा ज़हन था उस वक्त। उसके बाद हजरत ने फरमाया कि फिर इसमें एक दूसरा धोखा है जो उससे भी बड़ा है। मुद्दई से भी दलील का मुतालबा तो हो सकता है लेकिन दलील खास का मुतालबा इसकी इजाजत नहीं होती। ये दलील खास का मुतालबा असल में कुफार का शेवा था। अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाते
उनका दावा था कि हम खुदा के नबी हैं। उनके जिम्मा ये भी था कि अपने इस दावे को दलील से साबित करें। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथों पर मोजज़ात का इजहार फरमाते थे जो उनकी नबूवत के दलाइल होते थे। अब जो मुनकरीन थे उनका ये काम था कि या तो उसका मोजज़ा होना खत्म कर दें या उसको मान लें या वैसा काम करके दिखा दें, लेकिन वो फिर फरमाइशी मोजज़ात शुरू कर देते थे कि जी नहीं ये छोड़ो। जब देखा कि 2-4 मोजज़ात आ गए हैं, लोगों पर असर होने लगा है, तो फिर फरमाइशी मोजज़ात शुरू होते। नहीं जी ये मोजज़ा नहीं, इस किस्म का मोजज़ा हो, इस पहाड़ से इतनी लंबी चौड़ी ऊँटनी निकले, ऐसी हो, बच्चा दे, ये करे वो करे। तो ये फरमाइशी मोजज़ात कुफ़ार का शेवा था। मौलाना ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि आप लोग अबू हनीफा की तकलीद को तो शिरक कहते हैं, अबू जहल की तकलीद को आप कैसे जायज कहते हैं? क्योंकि ये तरीका तो अबू जहल और कुफार का था कि जो मोजज़ात हजरत ने दिखा दिए उनको खत्म करने के लिए कोई नई फरमाइश कर दी कि नहीं यूं हो जाए तो फिर देखा जाएगा, अब पिछले मोजज़ात खत्म। फिर मौलाना ने 2 मिसालें इस पर भी और बयान फरमाई कि देखो हम यहाँ बैठे हैं, एक आदमी आकर कहता है कि जी मैं बड़ा गुनाहगार आदमी हूँ, जवानी गुजर गई गुनाह में, अब ख्याल आया कि चलो तौबा कर लें अल्लाह की बारगाह में, तो मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ और आज से मैंने नमाज शुरू कर देनी है, पाबंदी से 5 नमाजें पढ़ूंगा। तो जाहिर है कि सारे सुनकर खुश होंगे ना। वो कहता है कि एक मेरी शर्त है साथ, वो क्या कि 5 नमाजों के औकात और 5 नमाजों की रकतें ये सब कुछ सिर्फ कुरान से दिखाएं, मैं हदीस से नहीं दिखाऊंगा। तो क्या अब आप ये सारी नमाज का तरीका और रकतें वगैरह सारा सब कुछ कुरान से दिखा सकते हैं? इस शर्त के बाद आप क्या वाकई ये यकीन करेगा आपका दिल कि ये नमाज पढ़ने आया है? वो सिर्फ इसलिए आया है कि जी मैं तो गया था उलमा के पास, बड़ी मिन्नतें की, 8 घंटा बैठ के अल्लाह के लिए नमाज सिखा दो, मुझे किसी मौलवी ने सिखाई नहीं, मैं क्या करूं? क़यामत को मैं इनका दामन पकड़ूंगा मौलवी साहबान। इसमें उसने गुनाह क्या किया कि दलील को खास कर दिया। हालांकि मसले की सूरत ये होती है कि दलील शरई से मसला बता दो, अब वो दलील कुरान से बता दे, मसला हदीस से बता दे, इजमा से बता दे, क़ियास शरई से बता दे, वो मसला शरई समझा जाएगा। दूसरी मिसाल हजरत ने यह दी कि देखो जिस तरह ये बहस मुनाजरे में 2 फरीक होते हैं, एक मुद्दई और एक मुद्दा अलैह, इस तरह मुकदमे में अदालत में 2 फरीक होते हैं। अब अदालत जो है वो मुद्दई से गवाहों का मुतालबा करती है कि भी अपने दावे पर गवाह पेश करो, मुद्दा अलैह को पूरा हक देती है कि इन गवाहों पर जरा करे, वो जरा करके गवाहों को खत्म कर दे, केस खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मुद्दा अलैह गवाह खास का मुतालबा शुरू कर दे कि नहीं जी मौलवी साहब की मैं गवाही नहीं मानूंगा, डीसी साहब को लाओ गवाही देने के लिए, डीसी साहब की मैं नहीं जी मानूंगा, गवर्नर साहब आकर गवाही दें तो फिर मैं सुनूंगा, वरना मैं सुनता नहीं गवाही। तो क्या हर मुकदमे के गवाह डीसी साहब हो सकते हैं? अगर ये गलत तरीका इख्तियार कर लिया जाए तो दुनिया की कोई अदालत सारी जिंदगी में एक मुकदमे का फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि मुद्दई बेचारा जो गवाह लाएगा बस मुद्दा ले इतने का, नहीं जी ये तो मैंने नहीं कहा था ना, वो फलां गवाह है। तो गैर मुकल्लिदीन के नजदीक पूरा दीन बर्बाद हो जाए ऐसी गलत शर्तों से, पूरा निजाम अदल बर्बाद हो जाए, इनको इसका कोई दुख नहीं। तो ये है कि हनफियों को तंग करना है। मैंने कहा हज़रत ये बात तो मुझे समझ में आ गई है वाकई कि ये बातें कुछ धोखे वाली हैं, लेकिन आप भी कोई ऐसा सवाल मुझे लिख के दे सकते हैं कि मेरे उस्ताद साहब भी मजबूर हो जाएं धोखा कहने को इन बातों का। मौलाना ने फरमाया कि क्यों नहीं लिख सकते, हम ऐसी फजूल बातों में पढ़ते नहीं, वैसे अब मैं तुम्हें समझाने के लिए एक सवाल लिख देता हूं। मौलाना ने वही इश्तहार लिया और उल्टी तरफ ये लिखा कि आप अपनी शर्त के मुताबिक एक ही हदीस सही सरी मरफू गैर मजलूस है ये साबित कर दें कि दलील शरई
सिर्फ हदीस सही सरी मरफू गैर मजरू में ही मुनासिर है। तो मैं आपको सिर्फ इस एक हदीस पर 10,000 रुपया नकद इनाम दूंगा। और मौलाना ने नीचे दस्तखत कर दिए। अब दस्तों पर मेरा दिल जो था ना वो, क्योंकि हमें उस्ताद साहब ने हमेशा ये बताया था कि कभी दस्तखत करके ना आए, और ना कभी हमें वो दस्तखत करके देते थे किसी बात पर। ये दस्तखत करने के बाद मैंने सोचा कि आखिर इन्होंने जो 10,000 रुपए की जिम्मेदारी ले ली है दस्तखत करके, तो मालूम होता है कि बात मजबूत है इनकी। अब मैं जनाब हारे हुए जवारिये की तरह वो इश्तहार लेकर वापस चला। उस्ताद साहब बड़ी बेकरारी से इंतजार कर रहे थे। मुझे दूर मस्जिद में दरवाजे में खड़े थे, दूर हाथ देखा, हाँ भाई कोई हनफी हाथ लगाता है इश्तहार को। मैंने कहा बड़ी बुरी तरह हाथ लगाया उन्होंने। ये क्या हुआ? मैंने कहा हज़रत हम 10 सवालों के जवाब में 10,000 देते हैं, वो एक सवाल के जवाब में 10,000 देते हैं, अब हम क्या करें? क्या वो कौन सा सवाल है? मैंने कहा हज़रत ये पढ़ ले। अब वो एक सत्र में सवाल था, उस्ताद साहब पढ़ने लगे तो एक सत्र पढ़ते पढ़ते 3 मरतबा यूं पसीना साफ। अब मैं भी समझा कि भाई सवाल तो एक ही ऐसा है कि पसीना आ गया उस्ताद साहब को। अल्लाह ताला की तरफ से कोई मेरी हिदायत का वक्त आ गया था। वो पढ़ते ही उस्ताद साहब के मुंह से जो पहली बात निकली वो यही थी, भाई ये शर्तें तो धोखे के लिए लगाई जाती हैं, ये शराइत तो महज धोखे के लिए लगाई जाती है। अब मैंने कहा हजरत धोखा और दीन में, आज तक तो हम इन शर्तों को अपना दीन ईमान समझते थे। ये तो आज मौलाना ने मुझे बताया कि आप कतन अल्लाह के नबी की हदीस को नहीं मानते, आपका ईमान अपने उस्ताद की शर्त पर है। आपको 40 हदीसें अल्लाह के पैगंबर की सुना दी जाएं, लेकिन वो आपके उस्ताद के अल्फाज में ना हो, उसी शर्त पर ना हो, तो आप उन हदीसों का इनकार करके चले जाएं। तो कौन कहता है कि आप लोग अल्लाह के नबी की हदीस मानते हैं? आप तो सिर्फ अपने उस्ताद की बात को मानते हैं। मिर्जा कादियानी दरअसल इस तरीके का बानी है कि जो लफ्ज मैं लिखता हूं, अगर इन अल्फाज में खुदा ताला बात करेगा तो मैं मानूंगा, वरना मैं नहीं मानूंगा। अगर इन अल्फाज में अल्लाह के पैगंबर मसला बयान फरमाएंगे तो मैं मानूंगा, वरना नहीं मानूंगा। यही इनके इश्तहारात में असल बुनियादी चीज होती है। आप कितनी हदीसें पढ़ते जाएं, वो कहें नहीं जी ये इस शर्त के मुताबिक तो नहीं है ना। तो मालूम हुआ कि नबी के पर ईमान नहीं, सिर्फ अपने उस्ताद और अपनी बनाई हुई शर्त पर ईमान है और कुछ भी नहीं। अब मैंने भी उस्ताद साहब से अर्ज किया, मैंने कहा हजरत ये तो आज मुझे पता चला कि वाकयातन हम आज तक झूठ बोलते रहे कि हम अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हम तो सिर्फ मौलवी अब्दुल जलील साहब रोजी की शर्त को मानते हैं, खुदा को तो मानते हैं ना, खुदा के रसूल को मानते हैं। उस वक्त एक और बात भी ज़हन में आ गई जो पहले थी ज़हन में, लेकिन उसका कभी असर नहीं दिल पर हुआ था। उस्ताद साहब जब पढ़ाने बैठते तो उनकी तपाई वगैरह मैं बिछाता, किताबें लाकर मैं रखता, तो 2 कापियां थी। एक पर लिखा था तकरीर बुखारी शरीफ, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद, और एक कापी पर लिखा था तकरीर तिरमिजी हजरत अल्लामा सैयद हुसैन अहमद साहब मदनी सदर मुदर्रिस दारुल उलूम देवबंद। तो मैंने एक दिन पूछा था उस्ताद साहब से कि हजरत जब ये लोग मुशरिक हैं, क्योंकि हमें तो ये झिझक नहीं होती थी बिल्कुल किसी को मुशरिक कहने, तो इन लोगों की ये कापियां आप क्यों साथ रखते हैं? तो उस्ताद साहब ने फरमाया था कि भाई असल बात यह है कि चंद मसाइल में हमारा इनके साथ इख्तलाफ है, लेकिन अगर हम इनकी ये कापियां ना पढ़ें तो हम हदीस पढ़ा नहीं सकते। अब ये बात सुनी लेकिन इसका कोई असर नहीं था। आज फिर याद आ गई मुझे, मैंने कहा हजरत ये धोखा आप उन लोगों से करते हैं जिनकी कापी के बगैर आप हदीस नहीं पढ़ा सकते। तो हकीकत बिल्कुल यही है कि ये लोग हदीस को नहीं मानते, सिर्फ अपनी शर्त पर ईमान रखते हैं। किरात खल्फुल इमाम के मसले पर, जैसे अब खत्म नबूवत पर 200 हदीसें मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह ने जमा फरमा दी, आप किसी कादियानी को 200 हदीसें सुना दें वो सुनता जाएगा। उनके मुनाजरीन ने उनको एक शर्त बता रखी है कि भाई
तो उसको सुनाने दो, वो थक जाएगा 2 से सुना के। आखिर में उसे ये कहो कि जी ये पेंसिल ले लो, इन 200 में से जिस हदीस में ये लिखा है ना कि गैर तशरीई नबी नहीं आएगा, हुजूर के बाद गैर तशरीई नबी, जरा गैर तशरीई पर वो यूं दायरा लगा दें तो वो होगी हमारे खिलाफ। अब क्या आप ये समझते हैं कि कादियानी अल्लाह के नबी को मानता है? वो सिर्फ इस शर्त पर जमा बैठा है कि ये लफ्ज होगा तो मैं मानूंगा, वरना 200 हदीसें भी अल्लाह के नबी की मैं नहीं मानूंगा। आप तरके रफा जान की हदीस सुनाए, वो कहता है जी इसमें मनसूख का लफ्ज है, दिखाओ कहां है। मैं तो नहीं मानता। जी इसमें मना का लफ्ज है, मैं तो नहीं मानता। मना का लफ्ज दिखाओ कहां। अब हम उसे 100 कहें कि तुम मेरी ना मानो, अल्लाह के नबी पाक की हदीस तो मानो, कहता नहीं नहीं ये मेरे लफ्जों में नहीं है ना जो मैं चाहता हूं, ये मेरी शर्त के मुताबिक नहीं है ना जो मैं चाहता हूं। तो हजरत मौलाना अब्दुल कदीर साहब दामत बरकातुल आलिया ने असल में मुझे ये बात समझाई। उस दिन मुझे ये बात ज़हन में आई कि हम ये झूठा दावा आज तक करते रहे हैं कि हम अल्लाह के पैगंबर को मानते हैं। हम तो सिर्फ अपने उस्ताद के अल्फाज पर ईमान रखते हैं। अगर अल्लाह ताला हमारे उस्ताद के अल्फाज में कलाम करे तो मानेंगे, वरना नहीं मानेंगे। अल्लाह के नबी शर्त के मुताबिक बात करेंगे तो मानेंगे, वरना हम नहीं मानेंगे। तो इसलिए ये एक वाज़ेह हकीकत है कि ये फिरका हदीस को कतई नहीं मानता, बल्कि जिस तरह कादियानी ने कुरान की आयात का इनकार करने के लिए कुछ शर्तें गलत बनाई हुई हैं और अल्लाह के नबी की अहादीस का इनकार करने के लिए, अब देखो वो भी ऐसे ही इख्तियार तय करते हैं। मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद का चैलेंज छपा हुआ है कि मैं 20,000 रुपए इनाम दूंगा जो हदीस में ये लफ्ज दिखा दे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर गए हैं, आसमान का लफ्ज हो, और वो भी रफा की हदीस में, क्योंकि नजूल की हदीस में आसमान का लफ्ज आता है ना, इस पर चैलेंज होगी। अब हम जब मिर्जाइयों को वो हदीसें दिखाते हैं जो खुद मिर्जा कादियानी ने हमामतुल बुशरा में नकल कर दी, उसमें आसमान का लफ्ज मौजूद है, तो कहते नहीं जी हमारा चैलेंज ये है कि आसमान पर जाने वाली जो हदीस है उसमें आसमान का लफ्ज हो। हम कहते हैं कि एक आदमी कहता है कि आज नईम साहब पेशावर से आए हैं, तो सबको पता ये लाहौर रहते थे ना, अब पेशावर पहले जाएंगे तो फिर ही पेशावर से वापस आएंगे ना। तो ईसा अलैहिस्सलाम का ये तो सबको पता है कि वो यही दुनिया में पैदा हुए थे। अब हदीसों में जब उनका आसमान से उतरना आ गया और मिर्जा उन हदीसों को लिखता भी है, तो उनका आसमान पर जाना भी साबित हो गया या नहीं? लेकिन वो कहते नहीं, ये अल्फाज नहीं है ना, यहाँ ये अल्फाज होने चाहिए बस। बिल्कुल यही तरीका गैर मुकल्लिदीन का है। आप किरात कल्पुल इमाम पर 40 हदीसें पेश कर दें, नहीं जी इसमें तो किरात का लफ्ज है ना, नहीं ये किरात का लफ्ज हम नहीं देखना, फातिहा का देखना, तो किरात का लफ्ज है और फातिहा किरात नहीं है, बस इसी पर शोर मचाते रहेंगे। तो मकसद ये है कि ये फिरका जो है ये हदीस को नहीं मानता, बल्कि हदीस को रद्द करने के लिए मौलाना मोहम्मद हुसैन साहब बटालवी ने भी इशाअत सुन्ना की 22वीं जिल्द में बड़ा रोना रोया है और तंग आकर लिखते हैं कि पता नहीं हमारे अहल हदीस भाइयों को क्या हो गया है, ये कहीं किसी की जुबान से तकलीद का लफ्ज सुन लें तो उससे ये इतने नाराज होते हैं जैसे सिख बांग सुनकर नाराज होते हैं। बिल्कुल यही अल्फाज उन्होंने लिखे हैं कि जैसे सिख बांग सुनकर नाराज होते हैं, ऐसे ही हमारे ये अहले हदीस जो हैं ये तकलीद का लफ्ज सुनकर नाराज हो जाते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं। फिर आगे उन्होंने ये लिखा है कि अगरचे हमारे अहल हदीस हजरात ये शिकायत करते हैं कि हनफी हमसे ज्यादती करते हैं और हमें तंग करते हैं, लेकिन मैंने जो तजर्बा किया है वो यही है कि इसमें कसूर हमारी जमात का है। क्यों? एक तो ये रात दिन उन्हें मुशरिक और काफिर कहते रहते हैं, दूसरे ये बहुत सी सही हदीसों को उनकी जिद में आकर छोड़ बैठे हैं, तीसरे ये बहुत सी ज़ईफ हदीसों को जो सलफ के यहाँ मामूल बयान नहीं थी
इनको इन्होंने जिद में आकर अपना मामूल बिहा बना लिया है और इससे ये सारी इफ्ताल की सूरत पैदा हुई है। अब मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी तो घर के भेदी है ना, वो बात बता रहे हैं कि असल में ये सारी शरारत हमारी तरफ से पैदा हुई है। और वैसे भी अकली तौर पर यही बात है, कहीं ईसाइयों और मुसलमानों में झगड़ा हो जाए तो क्या आपका ज़हन कभी ये बात बर्दाश्त करेगा कि किसी मुसलमान ने ईसा अलैहिस्सलाम को गाली दी होगी इसलिए लड़ाई हुई थी? मुसलमान कभी ईसा अलैहिस्सलाम को गाली नहीं दे सकता। यकीनन उस ईसाई ने ही हजरत पाक की शान में कोई गुस्ताखी की होगी जो लड़ाई की बुनियाद बने। कभी सुन्नी शिया लड़ाई में आपका ज़हन ये सोच सकता है कि किसी सुन्नी ने माअज़ल्लाह हजरत बीबी फातिमा को गाली दी होगी इसलिए लड़ाई हुई? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहू को गाली दी होगी इसलिए लड़ाई हुई? नहीं, यकीनन राज़ी की तरफ से इस किस्म की बात हुई होगी जो लड़ाई की बुनियाद बनी। इसीलिए मौलाना मुर्जा हसन चांदपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलवी सनाउल अमृतसरी को लिखा था कि मौलाना, क्या किसी हनफी मुकल्लिद ने इमाम बुखारी या किसी मुहद्दिस को गालियां दी थी जिसके बदले में आप इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को गालियां दे रहे हैं? क्या आप कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं? तो हकीकत यही है कि लड़ाई की बुनियाद जब ही बनेगी कि ये फुकाहा को गालियां देंगे। हम जिस तरह फुकाहा को अपने दिल का चैन तस्लीम करते हैं, दिल का नूर मानते हैं, हम मुहद्दिसीन को भी अपने सर का ताज समझते हैं। इसलिए हम उनकी शान में भी गुस्ताखी करने के रवादार नहीं हैं। तो जब भी लड़ाई की बुनियाद बनेगी तो इनकी तरफ से बनेगी। तो ये मैंने मुख्तन अपना वाक़या अर्ज कर दिया कि हकीकत यही है कि ये फिरका हदीस को नहीं मानता बल्कि हदीसों को रद्द करने के लिए ऐसी गलत शर्तें लगाता है कि हदीस को मानना ही न पड़े। इसके सिवा और कोई काम इस बेचारे फिरके ने नहीं किया। और लोगों को धोखा देने के लिए किसी किताब में लफ्ज असहाबे हदीस मिल जाए, अहले हदीस मिल जाए, तो याद रखें एक तो है हदीस का लुग़वी माना, वो तो बात है ना। एक कहने लगा, एक शख्स से कहने लगा जी मैं अहले हदीस हूँ। मैंने कहा वो अहले हदीस क्या मतलब क्या है? जी हदीस को मानने वाले। मैंने कहा आप कुरान को तो नहीं मानते ना? फिर जी नहीं, मैं कुरान को भी मानता हूँ। तो मैंने कहा फिर नाम अहले कुरान वाला हदीस चाहिए था ना, ये तुमने कुरान को तो छोड़ दिया है। जी हदीस जो है ये अल्लाह और अल्लाह के नबी की बात को कहते हैं। कुरान में नहीं आता ये हदीस में बात हुई हो मैनू। मैंने कहा कुरान में तो फिरौन की बात को भी हदीस कहा गया है। हल अता का हदीसुल जुनूद है फिरौन व समूद। तो मैंने कहा पता नहीं आप पहले हदीस फिरौन की हदीस मानने वाले हैं, ये कौन है, हमें क्या पता चला। मैंने कहा बात तो फिर भी खुली नहीं, वाज़े नहीं हुई। और अफसानों को कुरान ने अहादीस कहा है, वजालनाहुम अहादीस। तो मैंने कहा पता नहीं आपका ये अफसानवी मज़हब कब से चला है, तो खुदा जाने आप किन मानों में अहले हदीस है। फिर मैंने कहा हदीस के माने नया भी तो होता है ना, कदीम की जिद हदीस। तो मैंने कहा इसका तो मतलब होगा कि आप कोई बिदती फिरका हैं जो नया फिरका बने अपने आप को अहले हदीस कहलाते हैं। मैंने कहा नहीं जी इस्तिलाही मफ़हूम में। मैंने कहा इस्तिलाही मफ़हूम क्या है? अल हित्ता में और मुकदमा मिशकात में हदीस की तारीख लिखी है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कौल फेल तकरीर, सहाबी के कौल फेर तकरीर और ताबी के कौल फेर तकरीर को हदीस कहा जाता है। ये मुकदमा मिशकात में भी है। इस तारीख पर फिक़ह हनफी तो सारी हदीस बन जाएगी ना, क्योंकि इमाम अबू हनीफा ताबी हैं यकीनन। तो मैंने कहा फिर हम सब की हदीस माने तो हमें आप पहले हदीस नहीं कहते। आप नबी की हदीसें मानने में भी गलत शर्तें लगाते रहे और इनकार करते रहे, फिर आप पहले हदीस कहते। तो मैंने कहा इस इस्तिलाह के मुताबिक भी इस लक़ब के हकदार ज्यादा हम हैं। यही वजह है कि दुर्रे मुख्तार किताबुल वक़्फ़ में एक मसला है, उन्होंने लिखा है कि किसी शख्स ने मरते वक्त कुछ वसीयत की कि मेरी जायदाद में से इतना हिस्सा असहाबे हदीस पर खैरात कर देना। तो वो किन्हें दिया जाएगा? वहां लिखा है कि हनफी का हदीस पढ़ रहा हो या ना पढ़ रहा हो वो इसका विश्वास है।
और दूसरे फिरके का आदमी हदीस पढ़ रहा होगा तो वो इसका मिसाक बनेगा, वरना नहीं। और उसकी आगे फिर उन्होंने वजह भी लिखी है, क्योंकि इसके अव्वली मिसाक हनफी हैं, ये मुरसलात को भी हुज्जत मानते हैं और ज़ईफ हदीस को कियास पर मुकद्दम समझते हैं, इसलिए ये ज्यादा बेहतर मिसाक हैं इस उन्वान का। तो अब देखिए, शामी दुर्रे मुख्तार से असहाबे हदीस का लफ्ज लोगों को दिखाते फिरना और उसी किताब में असहाबे हदीस की जो वजाहत है उसको बयान न करना, ये धोखा और फरेब है या नहीं? तो ये लफ्ज इस्तिलाही है। अब इस्तिलाह जिन्होंने बनाई हो उनसे पूछा जाता है ना कि आपकी इस्तिलाह में इसका क्या, क्योंकि हर फन में एक इस्तिलाह के माने खास हो जाते हैं। वो एक वाकया याद है, मैं तफ्सीर खत्म के दफ्तर में बैठा था, अब गैर मुक़द्दर ने देखा ना कि ये रफ़ा ज़ैन किरात कल्पल इमाम पर हमारे काबू नहीं आया, तो 8-10 आदमी इकट्ठे होके आ गए, जी हमने जरा एक मसला पूछना था। मैंने कहा ठीक है, मैं जरा पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद फारुग हो तो फिर बात करते हैं। अब मेरे ज़हन में यही था कि तकलीफ का मसला होगा या किरात कल्पल इमाम का मसला होगा। वो जब बैठे तो जी ये वहदतुल वजूद का मसला क्या है, अजीब मसला शेर दिया इन्होंने। उनका वहदतुल वजूद तो एक इस्तिलाही लफ्ज है, इसके लुग़वी माने जो हैं, ये जो आप लेते हैं वो तो वो भी मुराद नहीं लेते, तो एक इस्तिलाही लफ्ज है और इस्तिलाह हर फन की अलग-अलग होती है। जैसे मैंने मिसाल दी, आम फहम बच्चे भी बैठे थे, मैंने कहा लफ्ज कलमा है। मैं कारी साहब के पास आकर बैठा तो कारी साहब ने कहा कि जरा बच्चों का कोई सबक ही सुन ले। तो मैंने एक बच्चे को कहा कि बेटा कलमा सुनाओ। उसने मुझे सुनाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या उसने कलमा सुनाया? नहीं सुनाया ना। यहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलमा नहीं है। मैं यहां से उठा, एक स्कूल में चला गया, स्कूल में वहां एक लड़का दूसरे को मां की गाली दे रहा था। मैंने ग्रामर का टेस्ट लेना था। अब मैं पूछता हूं कि ये जो मां की गाली है ये कलमा है या नहीं? वो कहते जी कलमा है। तो बा माना तो है। तो मैंने कहा देखिए, इस इस्तिलाह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी यहाँ कलमा नहीं बना और वहां मां की गाली भी कलमा बन गई। तो मैंने कहा उनका भी असल में यही मसलक है जो वहदतुल वजूद के कायल हैं, कि जिस तरह ये जितनी चीजें हमें नजर आ रही हैं, इंसान बैठे हों, हैवानात हों, दरख्त हों, कुछ हों, इनमें जो वन यूनिट और इकाई है